لوکل گورنمنٹ کے ایشوز کے اوپر بہت ساری ڈبیٹس میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، لکھا بھی ہے اس کے اوپر، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خیر تھیوریٹیکلی یا فلاسفیکلی یا پولیٹیکلی لوکل گورنمنٹ کو دنیا بھر میں جو ہے وہ بیسک ڈیموکریسی کی نرسری کہا جاتا ہے، اور یہیں سے لیڈرشپ کو بیسکلی پیدا ہونا چاہیے، ٹرین ہونا چاہیے، اور اسی ٹیئر سے چونکہ اس کا براہ راست تعلق ہوتا ہے عوام کے بنیادی مسائل اور ان کے حل سے، جو کہ یا تو میونسپل فنکشنز ہوتے ہیں یا سیوک فنکشنز ہوتے ہیں یا پرائمری ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ان کا بنیادی تعلق لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ہی بنتا ہے۔ کراچی کی کیا ہسٹری رہی ہے؟ کراچی تھوڑا سا ایک پاکستان کے اندر کراچی جو ہے اس کے ساتھ بڑا لاوارث سا شہر ہے، بڑا یتیم سا شہر ہے، اور 1947 کے بعد 48 میں جو ہے کراچی کو فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری کے تحت اس کا ایکٹ ہوتا ہے، اس کو فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری کا درجہ دے دیا گیا تھا، اور پھر ون یونٹ سسٹم رہا۔ تو ون یونٹ سسٹم میں آپ کو پتہ ہے دو ہی پروونس تھے، ایسٹ پروونس تھا اور ویسٹ پروونس تھا، تو یہ 4 صوبوں کا تو اس وقت اتنا نہیں تھا، تو ویسٹ پاکستان تھا، ایسٹ پاکستان تھا، اور فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری کراچی کہلاتی تھی۔ تو کراچی کے رہنے والوں کو ہمیشہ ایک اٹیچمنٹ رہی ہے، ایک ریلیشن شپ رہی ہے، ایک کنیکشن رہا ہے فیڈریشن کے ساتھ، چاہے وہ کراچی کی صورت میں رہا ہو یا اسلام آباد، تو جب بھی ان کی محبتیں، ان کی نظریں ہمیشہ چونکہ صوبے کا کانسیپٹ میں 48 کے بعد سے تھا نہیں، تو وہ ہمیشہ اسی طرف دیکھتے رہے، اور یہ جب تک کہ وہ 1970 کے بعد غالباً بھٹو صاحب کے آنے کے بعد چونکہ ایسٹ پاکستان نہیں رہا، تو پھر ویسٹ پاکستان کو دوبارہ سے ان 4 صوبوں میں فارم کر کے کراچی کو سندھ کا کیپٹل بنا۔ یہ تو ایک میں نے بریف سی ہسٹری آپ کراچی کی ہسٹری دے دی، اور تھوڑا سا ایک سینس دے دیا کہ وہاں کا جو پولیٹیکل سینس ہے یا جو وہاں کے لگاؤ ہے یا کنیکشنز ہیں وہ کیوں سندھ کے رورل ایریاز کے ساتھ یا سندھ کے حاکموں کے ساتھ اتنے زیادہ نہیں رہتے۔ اس کی ایک بریف ہسٹری ہے، ایک اچھی خاصی ہسٹری ہے پیچھے۔ پھر کراچی کی جو آبادی رہی ہے وہ پری ڈومیننٹلی ان لوگوں کی رہی ہے جو مائگریٹ کر کے آفٹر دی برتھ آف پاکستان they entered Pakistan as a matter of right. They were not taking refuge. یہ بڑا غلط کانسیپٹ ہے کہ انہوں نے ریفیوج لیا۔ مہاجر تو ایک آئیڈینٹی کے طور پہ ہوتا ہے، نہ تو وہ پناہ گزین تھے، نہ وہ ریفیوجیز تھے، نہ وہ مائگرینٹس تھے۔ They entered Pakistan as a matter of right, being in the forefront of the creation of Pakistan۔ جتنی بھی تحریک رہی، تو یہ بھی ایک پھر آپ دیکھیں گے جی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں، اور یہ سینسس دیکھ لیں، یہ سب چیزیں لوکل گورنمنٹ پہ ہی آ کے رکیں گی۔ سینسس دیکھ لیں، جس ملک میں آپ 2017 یا اس سے پرانے سینسس میں آپ ایک شہر کی آبادی کو ڈھنگ سے گن بھی نہیں سکتے، اور آپ کہتے ہیں کہ کراچی کی آبادی 16 ملین ہے، اور اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے سابق صدر آصف رضائی صاحب اسمبلی میں، سندھ اسمبلی کے فلور پہ، یہ 31 اکتوبر کی بات ہے 2018 کی، فلور پہ کہا کراچی کی آبادی کسی طور بھی 3 کروڑ سے کم نہیں۔ تو 3 کروڑ کے شہر کو، چلیں 2.5 کروڑ کے شہر کو آپ نے گنا وہی 1 کروڑ 60 لاکھ ہے۔ تو اب سینسس میں جو ریسورس ڈسٹریبیوشن ہونی ہے یا پلاننگ ہونی ہے، اس کے لیے ڈیٹا اور نمبر اسٹیٹسٹکس آپ کو سب سینسس کے چاہیے ہوتے ہیں، فنڈنگ بھی وہیں سے آتی ہے۔ تو کبھی بھی کراچی کو یا کراچی جیسے اور اس طرح کے بدنصیب شہروں کو نہ تو پراپر فنڈنگ مل پائے گی، نہ پراپر پلاننگ ہو پائے گی، نہ وہاں پہ آپ کی پولیٹیکل مینجمنٹ ہو پائے گی۔ گورننس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ آپ اتنا بڑا ویکیوم کریٹ کر رہے ہیں، اتنی بڑی جگہ دے رہے ہیں مس مینجمنٹ کو، کہ اس کے جو بھی پلانر ہوں وہ فرشتے بھی لا کے بٹھا دیں تو وہ 1 کروڑ 60 لاکھ کا کھانا پکا کے 3 کروڑ لوگوں کو نہیں کھلا سکتے۔ تو یہ بھی ایک پرابلم ہے، سینسس دا پرابلم۔ 2017 کا میں نے آپ کو یہ مثال دے دی۔ اب آ جائیں جی لوکل گورنمنٹ۔ ہمارے بھی بڑے بادشاہ لوگ ہیں جو اسمبلی پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، اور میں نے بادشاہ کا لفظ استعمال کیا کہ لوکل گورنمنٹ جب بھی پھلی پھولی ہے، انفارچونیٹلی وہ ماشاء اللہ کے دوروں میں ہی رہی ہے، چاہے وہ ایوب خان صاحب کا ہو، ضیاء صاحب کا ہو، یا مشرف صاحب کا ہو۔ اس زمانے کی لوکل گورنمنٹ کو پھر بھی امپاور کیا گیا، اس کے پولیٹیکل ریزن تھے۔ وہ جو آٹوکریٹس تھے یا ملٹری رولرز تھے، ان کی چونکہ کانسٹیچوئنسی نہیں ہوتی تھی، ان کی چونکہ پولیٹیکل فالوئنگ یا پولیٹیکل گریسپ نہیں ہوتی تھی گراس روٹ لیول پہ، تو وہ ایک اپنا سسٹم کریٹ کیا کرتے تھے، وہ چاہے بی ڈی لیول کا ہو یا ضیاء صاحب کا لوکل گورنمنٹ کا ہو
یا मुशर्रफ साहब का जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो जो तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट करने के लिए वो मजबूर होते थे कि वो इस तरफ जाएं और उसको एम्पावरमेंट दें ताकि प्रोविंशियल और नेशनल लेवल की जो हमारी एलीट एरिस्टोक्रेटिक किस्म की एलीट किस्म की खानदानी सियासत पार्टियां उनको एक तरफ करने के लिए वो ये किया करते थे। लेकिन हमारे आइन में अगर आप देखेंगे जहाँ हमारे सारे बादशाह लोगों को हमारे इस एलीट तबके को जो कि तमाम प्रोटोकॉल एंजॉय करता है और हमारा प्रोमिनेंट तबका है पार्लियामेंट में बैठा, उसने कभी हमारे लोकल गवर्नमेंट को आइन में सिर्फ 3 आर्टिकल में ज़रा ज़रा बयान करके उसको बस छोड़ दिया। आर्टिकल 140A को जो है वो अजीब तरीके से ड्राफ्ट किया गया और मैं अहमद भाई के साथ 1-2 सेमिनार्स में रहा हूँ और हमारी हमेशा डिबेट होती थी। जो भी मसला आता था हम यही कहते थे कि भाई लोकल गवर्नमेंट नहीं है, आपकी प्लानिंग चाहे एजुकेशन हो चाहे हेल्थ केयर हो कैसे करेंगे, नीचे आपके पास वो टूल्स ही नहीं है। सो हमने अपने बाइन में आर्टिकल 140A क्रिएट कर दिया, बड़ा एहसान किया कि ईच और के सूबों को हमने ताकीद कर दी, हिदायत कर दी कि एक अपना लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करें, उसके इलेक्शन कराएं, उसको डिवॉल्व कर दें पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स। ये हमने हिदायत जारी कर दी बादशाह सलामत ने 3 लाइनें लिख के आइन में। उसके बाद उन्होंने कोई उसकी शहजादों ने जो है वो कोई, सॉरी मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ मैं इस हवाले से। उसके बाद उन्होंने किसी भी तरीके से आइन में इसको डिफाइन नहीं किया। अभी आप देखें पंजाब के अंदर गवर्नमेंट जा रही है, गवर्नमेंट आ रही है, प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, चीफ मिनिस्टर जा रहा है, चीफ मिनिस्टर जा रहा है, गवर्नर चाहता भी है तो वो अगर वो चाहे भी तो प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकता। गवर्नर प्राइम मिनिस्टर चाहे भी तो वो चीफ मिनिस्टर को घर नहीं भेज सकते। क्यों? आखिर ऐसी क्या बात है? हर जगह खड़े होकर लोग आइन का हवाला देने शुरू कर देते हैं कि आइन में इख्तियारात ये हैं, आइन यूं कहता है, आइन सीएम को ये पावर देता है, आइन जो है वो गवर्नर रूल की इजाजत नहीं देता। आइन जो है वो प्रोटेक्ट किए बैठा है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट वाहिद हमारे यहाँ ये है कि हमने आर्टिकल 140A में जिक्र करने के बाद, थोड़ा बहुत आर्टिकल 32 में जिक्र करने के बाद, हमने कहीं भी अपने आइन में वो प्रोटेक्शन दी ही नहीं लोकल गवर्नमेंट को कि उसकी भी हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आइन ले ले और कोई भी आने वाला शख्स चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो इस्लामाबाद के इलेक्शन को ना रोक सके, वो कराची के इलेक्शन को ना रोक सके, वो एक टर्म खत्म होने के बाद दूसरी टर्म के दरमियान जो वक्फा है वो जो आइन इजाजत देता हो उससे ज्यादा ना जा सके। ये हमारे यहाँ आइन में इस बात की कमी है। इसीलिए मेरा मानना ये है, कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर आगे लोग इस पे बात करेंगे यकीनन, कि कानून साजी से काम नहीं चलेगा। सिर्फ कानून एक अच्छा बनाने से जो सूबाई हुकूमत बनाए जिसको एक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के जरिए उसमें इजाफा कमी मेयर को हटा और लगा सके, दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। एक प्रोविंशियल असेंबली जिस वक्त मतला हो वो उस आइन में उस कानून में तब्दीली कर दे और उसको सिर्फ एक सिंपल मेजोरिटी से आप उसको चेंज कर सकें। नहीं, मैं समझता हूँ जैसे हमारे पास बड़ी अच्छी एग्जांपल है, हमारे पड़ोस में इंडिया में ये मसला था, जर्मनी में यही मसला था। इंडिया में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की है नंबर 73 एंड 74, बड़ी मशहूर है। आप गूगल पे यूट्यूब पे जाएंगे, बड़े इस पे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, बड़े इंटरव्यूज मिल जाएंगे इंटेलेक्चुअल्स के, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के, कि 73 एंड 74 में उन्होंने अपने लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को, इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। और उसमें उन्होंने जो बातें की हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मैं उसके पॉइंट्स रख देता हूँ। हमें भी अब ये चाहिए कि अपने पार्ट 4 में चैप्टर 4 का बाकायदा इजाफा करें और ये हमारी पार्लियामेंट करेगी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब तक ये नहीं करेगी मैं नहीं समझता कि हम डिबेट से आगे बढ़ सकेंगे। और हर 2 साल शॉर्ट पीरियड के बाद हम यही डिबेट कर रहे होंगे, यार अब क्या होगा अब क्या नहीं होगा। 6 इंपॉर्टेंट चीजें उसके अंदर उनको डिफाइन करनी है चैप्टर 4 में। नंबर 1, दे शुड डिफाइन लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल काउंसिल। नंबर 2, दे शुड डिफाइन प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, सिमिलर टू दी फॉर्मूला जो नेशनल फाइनेंस कमीशन होगा, उसी बुनियाद पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पीएफसी को उसमें तय कर दें। इलेक्शन ये प्रोसेस को भी तय करें, उसकी टाइमिंग को भी तय करें, उसके प्रोटोकॉल को भी तय करें। नंबर 4 उसमें इंपॉर्टेंट तय करें पावर्स ऑफ मेयर, जैसे सीएम के पावर्स होते हैं, जैसे कैबिनेट का जिक्र है इसके अंदर, जैसे उनकी अथॉरिटीज का जिक्र है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का जिक्र है, पावर्स का जिक्र है, ऐसे ही आप मेयर्स का, चेयरमैन का, यूसी चेयरमैन के इख्तियारात का तस्करा करें और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तक लेके जाएं, इसको तहसील तक लेकर जाएं, इसको नीचे तक लेकर जाएं, यूनियन काउंसिल तक।
फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो इलेक्शन के दरमियान जो पीरियड होगा, एक लोकल गवर्नमेंट जा रही है, दूसरी ना आना है, 60 दिन का होगा, 90 दिन का होगा, उसको तय कर लें, उससे ऊपर नहीं जा सकते। पंजाब की फिर मिसाल दूंगा, बात हो रही थी ना कि अगर ये असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, हम 60 दिन में इलेक्शन करा देंगे। ओ भाई क्यों करा देंगे? लोकल गवर्नमेंट को नहीं कराते आप, मत करो, इसके भी बैठे रहो। लेकिन कराना इसलिए पड़ता है कि दिल ना भी चाह रहा हो तो आइन आपको इजाजत नहीं देता, तो यू हैव टू डू इट इन 60 days। सिमिलरली केयर टेकर सेटअप आए लोकल गवर्नमेंट का, जिस दौरान ये इंटरम पीरियड हो, उसके बाद इलेक्शन हो जाए। सिक्स्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, छठा पॉइंट इसमें आप ये तय करें कि एक शेड्यूल लिस्ट का इजाफा करें अपने आइन के अंदर, जो कि जितने डिपार्टमेंट्स आपने डिवॉल्व करने हैं या आपने उनको को मैनेज करना है, उन सब की फहरिस्त जारी करें, लिखें, आइन का हिस्सा बनाएं कि फला 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 डिपार्टमेंट इज ट्रांसफर डिवॉल्व टू लोकल गवर्नमेंट, फला फला डिपार्टमेंट विल बी मैनेज बाय बोथ provincial and local government, या फला डिपार्टमेंट विल बी मैनेज बाय बोथ फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट। यू हैव टू गिव इट अ लिस्ट, ताकि ये वंस एंड फॉर तय हो जाए कि भाई ये महकमे जो हैं अभी लोकल गवर्नमेंट के हैं, अब इनको वो डेवलप करेगी। सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं कराची के हवाले से आपको थोड़ी सी बात करके ख़त्म करता हूँ कि कराची में प्रॉब्लम एक और ये भी है कि कराची जो हम देखते हैं कि कराची बड़ा बदहाल है, तो कराची का तो अराउंड 33% एरिया जो है ना लैंड, दैट इज अंडर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। केएमसी के पास सिर्फ 33% लैंड है, जो हमारे बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता। मोर देन 66% लैंड जो है वो डिफरेंट एजेंसीज के पास है, जिसमें कैंटोनमेंट्स हैं, 6 कैंटोनमेंट, मलिर कैंटोनमेंट है, शाह फैसल कैंटोनमेंट है, कराची कैंट है, ये डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड है, मनोड़ा कैंट है, ये सब कैंट के इलाके हैं, ये केएमसी के अंडर नहीं आते हैं। इसी तरीके से कराची के अंदर रेलवे का अपना म्यूनसिपल फंक्शन है, दीगर इदारों के म्यूनसिपल फंक्शन है, सिंध कच्ची आबादी काम करती है बहुत सारी जगहों पे। तो ओवरऑल कराची के अंदर इस वक्त 13 या 14 एजेंसीज हैं जो म्यूनसिपल फंक्शंस की लैंड के हवाले से, यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट के हवाले से 13 डिफरेंट एजेंसीज हैं जो काम करती हैं। जबकि फ्रंट पे हमेशा आपको कराची का मेयर नजर आता होगा, जिसको कि बुरा भला भी कहा जाता है, तमाम चीजें होती हैं। तो सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट वुड बी कि इन अ सिटी एन एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट जहाँ पे आप इस्टेब्लिश कर लेते हैं, वहाँ पे ये ड्रामेबाजी ख़त्म करें कि मुख्तलिफ एजेंसीज का नहीं, म्यूनसिपल फंक्शन फिर उस शहर की मेट्रोपॉलिटन म्यूनसिपल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास होगा, उस कॉर्पोरेशन के पास होगा जो उसको मैनेज करेगी। दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, एवरी इंच ऑफ दैट सिटी, एवरी इंच ऑफ देयर, जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की डोमेन है उसके अंदर वो उसकी जिम्मेदारी होगी। मल्टीपल एजेंसी काम नहीं करेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड होगा, दैट यूनिटी ऑफ कमांड विल फॉल अंडर लोकल गवर्नमेंट एंड देन द सिटी। आखिर में बस एक बात अदनान भाई की, एक बात उन्होंने छेड़ी थी, बड़ी अच्छी बात की थी, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अदनान भाई, इशू ये हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर खानदानों का बड़ा जोर है। और ये बात मैं लोकल गवर्नमेंट के हवाले इसलिए कर रहा हूँ कि अगर लोकल गवर्नमेंट एम्पावर हो जाएंगी तो एक यूसी लेवल का आदमी, एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन लेवल का आदमी, एक टाउन का मेयर, वो पॉलिटिकली बड़ा एक्टिव भी होगा और पॉपुलर भी होगा काम करते हुए। फिर वो अपनी पार्टी में अपनी जगह बनाएगा अपनी अपनी उस एक्सपीरियंस की वजह से। तो हमारी सियासी जमातों में इस इनपुट को पसंद नहीं किया जाता कि नीचे से लीडरशिप को डेवलप कर। वो बड़े रेयर केसेस होते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शानदार किस्म का आदमी अपनी तौर पे कोशिशें करता हुआ, सबको धक्के देता हुआ अपनी सलाहियत की बुनियाद पर ऊपर आ जाता है। ऐसा बहुत कम होता है, बड़ी कम पार्टियां हैं। एक एमकेएम मिसाल है, जमात इस्लामी ऐसी ज़रूर मिसाल है जहाँ पे कि ग्रास रूट लेवल को ऊपर आने का बड़ा मौका मिला। 3 हमारे यहाँ पाइपलाइंस होती हैं पॉलिटिकल किसी भी पार्टीज के अंदर फीडिंग की। एक होती है सर हमारे यहाँ स्टूडेंट यूनियंस, जिसके थ्रू पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज में जाती है। दूसरी होती है सर हमारे यहाँ लेबर यूनियंस, जहाँ से कि ये चीज, और तीसरी होती है हमारे लोकल गवर्नमेंट। ये 3 हमारे पास फॉर्मूलेज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से लीडरशिप डेवलप हो गया, फिर पार्टियों में जाती है। हाल देख लें अपने मुल्क में इन तीनों का। इसके बाद मैं खत्म करता हूँ। इसीलिए जी हमारे यहाँ अच्छी लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप जी, नहीं हो सकती। आई विल थैंक यू, पार्टिसिपेट। थैंक यू रजा साहब। ये हम कुछ आसिया साहिबा से भी पूछ लेते हैं, ये तो माशाल्लाह सियासी इसी पे काम करती हैं। अरफा साहिबा, सॉरी